جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. جہاں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یوم عاشور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثاروں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ سمیت بڑے شہروں میں مرکزی جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر. شام غریبہ میں اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے آنسو بہائے گئے. نوحہ خوانی اور سوز و سلام کے ذریعے محبت کے پھول نچھاور. سیکیورٹی اداروں کی انتھک محنت، یوم عاشور بخیریت گزر گیا. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے 25 شہروں میں موبائل سگنل ڈاؤن رکھے گئے. ڈبل سواری پر پابندی، حساس علاقوں میں عمارتوں پر شوٹر تعینات رہے تو مرکزی جلوسوں پر سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ ڈرونز نے بھی کڑی نظریں رکھی. کراچی میں بھی کڑے انتظامات، 8000 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے ذمہ داریاں نبھائیں. صوبے کے بڑے بھی دن بھر متحرک. وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی نے ایم اے جناح روڈ پر جائزہ لیا. مراد علی شاہ نے ہیلی کاپٹر سے بھی شہر پر نظر رکھی. کور کمانڈر رینجرز ہیڈ کوارٹرز گئے تو میجر جنرل بلال اکبر نے بریفنگ دی. دین کی سربلندی کے لیے لہو سے روشن چراغ، روشن و منور. پاکستان کی طرح دنیا بھر میں شہدائے کربلا کا غم منایا گیا. کربلا میں سب سے بڑا اجتماع، 20 لاکھ سے زائد عزادار روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع. ایران، لبنان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی جلوس اور مجالس. ہاں حسین کامیاب، حسین یا حسین. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثاروں کو سلام. عقیدت مندوں نے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. نظر و نیاز تقسیم، جلوسوں کے راستوں میں دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی. ملتان میں حلیم کی 100 من دیگ. بھارت نے مذہبی آزادی کو بھی زنجیروں میں جکڑ ڈالا. یوم عاشور پر جلوسوں سے روکنے کے لیے کرفیو مزید سخت. عزادار تمام پابندیاں توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. فورسز نے دھاوا بول دیا. تشدد سے متعدد زخمی ہو گئے. حریت رہنماؤں کی کٹ پتلی انتظامیہ پر کڑی تنقید. ڈبل سواری پر ڈبل سزا. گجرانوالہ پولیس کی اندھا دھند کارروائیوں میں گرفتاریاں اتنی بڑی کہ تھانوں میں جگہ کم پڑ گئی. اہلکاروں کو بھی انوکھی تدبیر سوجی، زنانہ حوالات میں بند کر دیا. کتنے حملہ آور تھے؟ سرکار صرف 2. تم کتنے تھے؟ پوری فورس. سرجیکل سٹرائک کی بڑکے مارنے والی فورس 56 گھنٹے تک بے بس اور لاچار نظر آئی. اسلحہ کا ذخیرہ پھونک ڈالا، عمارت کا حلیہ بگاڑ دیا. کتنے مارے گئے اور کتنے فرار یہ بھی معلوم نہیں. دریائے جہلم سے تیر کر آنے کا شوشہ چھوڑ دیا. بھارتی مظالم دنیا بھر میں بے نقاب. پاکستان نے ڈوزیئر اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں یو این کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کرائے. ہائی کمشنر عبدالباسط نے سرجیکل سٹرائک کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا جعلی ثبوت کبھی بھی تیار کیے جا سکتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 16 اکتوبر کو صبح 10 بجے بلاول ہاؤس سے سلام شودہ ریلی لے کر
कारसाज जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का 16 अक्टूबर को बिलावल हाउस से कारसाज तक सलाम शोहदा रैली निकालने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं 18 अक्टूबर 2007 को दुनिया की तारीख का बदतरीन सानहा हुआ। रेनाला खुर्द में हंसते बसते घर पर कयामत टूट पड़ी। छत गिरने से मेहमान मियां बीवी समेत 5 अफराद जाँ बहक। अहले इलाका और इमदादी टीमों ने 5 शदीद जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हाई कोर्ट जजेस की कमी, रावलपिंडी बेंच में मुस्तकिल सिविल बेंच की तैनाती रोक दी गई। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद तलब। नई तकर्रियों के अलावा 4 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने या ना करने से मुतालिक फैसला भी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं दुआ कमर और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूर। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिला हुसैन के जानिसारों को सलाम पेश करने के लिए शहर शहर करिया करिया मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी पर गिरियाजारी और नोहाखानी की। मातमी जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बरपा है, जहाँ मसाइबे अहले बैत बयान किए जा रहे हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मिसाली इंतजामात देखने में आए। एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नोक पे सुबहान रब्बी लाला। यौम आशूर पर इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाजवाल कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए मुल्क भर में मातमी जुलूस बरामद हुए। शबी जुलजना, अलम और ताजियों के जुलूसों के शुरका अज़ादारी और नोहाखानी करते हुए अपनी अपनी मंजिलों पर पहुँचे। कराची हो या लाहौर, रावलपिंडी हो या पेशावर या कोयटा, तमाम छोटे बड़े शहरों में फातिमा के लाल का गम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाकर शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। हुसैन मैं तौहीद की हयात भी है हुसैन। हम इंशाअल्लाह ताला उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मौला की अदादारी है। मातमी जुलूस बरामद होने से पहले मजालिस का एहतमाम किया गया, जिनमें उलमा ने फलसफा शहादत पर रोशनी डाली। जाकरीन ने मसाइब अहले बैत बयान किए तो हर आंख पुरनम हो गई। मातमी जुलूसों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। अज़ादारों ने लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए सीना को भी जंजीर जनी और नोहाखानी करके सैयदुश्शुहदा नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पर पुरसा दिया। इस दिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके घर वालों ने जो कुर्बानी दी है, ये तारीख में लिखी जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन शहीद होकर हमें अमन का पैगाम दिया। अज़ादारों की सहूलत के लिए जुलूसों के रास्तों पर जा बजा सबीलों और न्याज का भी एहतमाम था, जहां काफिला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जान निसारों की प्यास और भूख की याद में ठंडे पानी, शरबत और लंगर का बंदोबस्त किया गया था। अज़ादारों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मरकजी जुलूस के रास्तों को कंटेनर लगाकर सील रखा गया। तमाम रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स के हजारों एहलकार भी तैनात थे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, एबटाबाद, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत कई हसास शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी थी। कई शहरों में मुकम्मल और कहीं जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही, जो बाद में बहाल कर दी गई। मरकजी मातमी जुलूसों की ड्रोन से फजाई निगरानी का भी इंतजाम किया गया था, बल्कि जुलूस के रूट्स पर हजारों CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे। मुल्क भर में बरामद होने वाले तमाम छोटे बड़े मातमी जुलूस खैर आफियत से अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जहां शाम गरीबा बपा हैं।
जहां नाज़रीन मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूसों के बाद शाम गरीबा बरपा है, जहां अहले बैत के मसाइब बयान किए जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे नईम खानजादा, लाहौर से हमारे साथ हैं साकिब सलीम भट्ट, रावलपिंडी से वकास अहमद और गुजरावाला में शाहिद सलीम इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। नईम खानजादा, आप तफसीलन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज जो है नश्तर पार्क से मजलिस हुई और उसके बाद जो है वो मरकज़ी जुलूस यहाँ से बरामद हुआ और मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ और उसके साथ साथ अब शाम गरीबा है और उसके बाद ताज़िया निकलने का सिलसिला। इंतहाई सख्त इंतजाम देखे गए, रेंजर्स, पुलिस और हुकूमत सिंध भी बड़ी फाल नज़र आई और सब जगह के ऊपर जो है वो हमने देखा कि तमाम आज़ादारान जो है वो बखूबी जो है वो तमाम मंजिलों से जो है वो फारिग हुए। और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कराची के अंदर मातमी जुलूसों के हवाले से हमने एक पूरा एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है। आए हम आपको वो दिखाते हैं। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को कराची में भी यौम आशूर मनाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मिस्टर पार्क में अल्लामा तालिब जौहरी ने मजलिस में वाक़े करबला और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। बूतराब स्काउट की क़यादत में मरकज़ी जुलूस निकाला गया। डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में MQM पाकिस्तान का वफ़द भी काफ़िले में शामिल हुआ। शैला रजा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राशिद रब्बानी और वक़ार मेहंदी ने भी जुलूस में शिरकत की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी हमारे कौमी ज़िंदगी में इसी कुर्बानी और इसार का जज्बा हम पैदा करें। जुलूस की गुजरगाहों पर सिंध रेंजर्स का मेडिकल कैंप और जगह जगह सबीलें भी लगाई गईं। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा भी MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार के साथ शरीक हुए। इस दफ़ा खुद मैं समझता हूँ कि आवाम ने महसूस किया होगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंतजाम काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री और लोग मेंटली पीसफुल थे। अपने दिल की गहराइयों से हुसैन का गम मनाते हैं और दुनिया को यही मैसेज देते कि इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये पूरी कुर्बानी दी है, इस्लाम बचाया है। हुसैन का नाम जिंदा रहेगा और यजीद जो है वो इंशाअल्लाह उसका नाम और निशान लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 8000 से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही, मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। साथी रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज कराची। सिक्योरिटी के हवाले से मुराद अली शाह खुद जो है वो जलसे गाह के अंदर जुलूस के शुरका के साथ पहुंचे और उसके साथ साथ DG रेंजर्स जो थे वो खुद जो है वो आए और उन्होंने खुद जायजा लिया सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस हवाले से देखते हैं हम एक रिपोर्ट। कराची में यौम आशूर मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए सूबे के बड़े भी सारा दिन इंतहाई मुतहरिक रहे। मातमी जुलूस नश्तर पार्क से रवाना हुआ तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर और IG सिंध AD ख्वाजा के साथ MA जिना रोड पहुंचे और जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जो भी मुंतजमीन हैं मजालिस के जुलूसों के, उन सब ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और ये थ्रेड को देखते हुए उन्होंने इंतजामिया के साथ पुलिस, रेंजर्स, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन सब के साथ कोऑपरेट किया है। इससे पहले वजीर आला ने CM हाउस के कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। कराची के बाद मुराद अली शाह सक्कर और लाड़काना डिवीजन के दौरे पर रवाना हो गए। वापसी पर वजीर आला ने दोबारा कराची में हेलीकॉप्टर से शहर और जुलूस का जायजा लिया। पुलिस, रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मुंतजमीन के जो कोऑपरेशन से जो भी चीज़ें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह एज पर प्लान और उस हिसाब से हुई हैं। उधर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी जुलूसों की सिक्योरिटी से मुतालिक हुक्काम से मुसलसल राब्ते में रहे। दूसरी जानिब तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवेद मुख्तार ने रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। रेंजर्स हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर ने यौम आशूर के सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज कराची। कराची की सूरत हाल बता रहे थे नईम खानजादा। आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से साकिब सलीम भट्ट हैं हमारे साथ। साकिब, आप हमें अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जो है मोची गेट में गुज़श्ता राज 9वीं और 10वीं का जो मरकज़ी जुलूस था वो करबला गाह में शाह में अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह में इख्तिताम पज़ीर हो
اکربلا جامع شاہ کے اندر جو ہے شام غریبہ جو ہے وہ برپا کی جا رہی ہے. عزاداران بہت زیادہ یہاں پہ جاتے. اس حوالے سے جو ہے پولیس نے جو ہے اس دفعہ لاہور میں پہلی مرتبہ جو سیف سٹی پروجیکٹ تھا اس کے تھرو جو ہے 200 سے زائد CCTV کیمرے لگائے تھے, جو جگہ جگہ کیمرے کی جو ہے اس کی مانیٹرنگ کی جاتی تھی, فضائی نگرانی بھی کی جا رہی تھی. اور لاہور میں سیکورٹی کے لیے 10,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے جوان تھے جنہوں نے مکمل سیکورٹی پرووائڈ کی, جس میں جو عزاداران تھے وہ بھی کافی جو ہے وہ مطمئن جگہ دکھائی دی ہے. لاہور میں آج جو ہے سارا دن جو ہے جو آدمی جلوس وغیرہ نکالے گی جس میں عزاداروں کی بہت بڑی تعداد شامل تھی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. گزشتہ رات نثار حویلی سے 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد ہوا. جلوس میں شامل عزاداروں نے کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. عزادار ماتم بھی کرتے رہے. عزاداروں نے سنہری مسجد رنگ محل چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی, جس کے بعد زنجیر زنی کی گئی. جلوس رنگ محل چوک سے ہوتا ہوا پانی والا تالاب, سید مٹھا بازار, بازار حکیمہ اور بھاٹی چوک سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچا, جہاں نماز مغربین ادا کی گئی اور شام غریباں بھی برپا ہوئی. عاشورہ کے جلوس کی حفاظت کے لیے 17,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے. جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی گئی. جلوس کے اطراف میں موبائل فون سروس بند اور ڈبل سواری پر پابندی رہی. محمد ہارون, ایکسپریس نیوز, لاہور. ابھی رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا. وقاص احمد, آپ بتائیے گا تازہ ترین صورتحال بھی اور تمام دن کیا صورتحال رہی, تفصیلاً آگاہ کیجیے. جی بالکل, ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد پر جو مجالس اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد بھی کیا گیا. 65 ماتمی جلوس جو ہے وہ راولپنڈی میں نکالی گئی. 115 مجالس کا اہتمام کیا گیا, جو تمام جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے جو منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں. سوائے جو ہے وہ مرکزی جلوس کے جو تقریباً جو ہے وہ 10 بجے کے قریب جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ اختتام پذیر بھی ہو جائے گا. سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے. 6,500 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات تھے. 10 کمپنیاں جو ہے وہ رینجرز کی بھی جو ہے وہ سیکورٹی پر مامور رہی, جبکہ اوور آل جو ہے وہ کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے جو ہے جلوس کی نگرانی کی جاتی رہی. جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں جلوس نکالے گئے, جس میں عزادار حسین جو ہے وہ ماتم کرتے رہے, جبکہ ان کے لیے عزاداروں کے لیے جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا اور جو ہے وہ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا. آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. خدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر ماتمی جلوس نکالے گئے. راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلے سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کمیٹی چوک اور اقبال روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچا, جہاں سے مزید 5 جلوس شامل ہوئے اور شرکا نے فوارہ چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی. امام حسین کسی ایک مسلک یا کسی ایک فقہ کے نہیں ہیں. امام حسین جو ہے پورے اسلام کے رہبر تھے, ان کو شہید کیا گیا. جلوس قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا, جہاں شام غریباں برپا کی گئی. امام بارگاہ بلتستانیہ اور امام بارگاہ یادگار حسین سے بھی جلوس برآمد ہوئے, جو مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہو گئے. راولپنڈی کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 6,000 پولیس اہلکاروں اور رضاکاروں کے علاوہ رینجرز کی 10 کمپنیاں تعینات رہیں, جبکہ فوج کی 8 کمپنیوں کو ہائی الرٹ رکھا گیا. جلوس کے راستوں میں لنگر اور سبیلوں کا انتظام بھی کیا گیا. ادھر اسلام آباد میں یوم عاشور پر کوئی مرکزی جلوس نہیں نکالا گیا, تاہم مختلف علاقوں میں چھوٹے جلوس نکالے گئے. F11 سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ سید مزمل پہنچ کر ختم ہوا. عمران اصغر, ایکسپریس نیوز, راولپنڈی. گجرانوالہ سے شاہد سلیم ہمارے ساتھ ہیں. شاہد سلیم, آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا, سارا دن جلوسوں کے کیا انتظامات دیکھے گئے؟ جی بالکل, گجرانوالہ میں بھی یوم عاشور عاشقانہ امام حسین نے مذہبی عقیدت سے منایا. آج دن بھر جلوس اور مجالس منعقد ہوتی رہی. یہاں پر گجرانوالہ میں 2 مرکزی جلوس نکالے گئے. پہلا جلوس امام بارگاہ گلستان معرفت کالج روڈ سے نکالا گیا. دوسرا جلوس جو ہے وہ باغیچی چوک کی مرکزی اور قدیمی امام بارگاہ جسے باب الحوائج کہتے ہیں وہاں سے نکالا گیا, جو اب جامعہ امامیہ میں آ کر اختتام پذیر ہوا ہے. یہاں پر آ کر عزاداروں نے ماتم زنی کی, لوحہ خوانی کی اور اب تمام جو جلوس ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں.
यहाँ पर गुजरांवाला में सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से पूरे ज़िला में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जबकि DCO ऑफिस में पूरे ज़िला को की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया था, जहां से दिन भर तमाम मजालिस और जुलूसों को मॉनिटर किया जाता रहा। यहाँ पर गुजरांवाला में जब सबीलें लगाई गई थी, एक छुट्टी के साथ लोग दिन भर बड़ी अकीदत के साथ जुलूसों को में शामिल होने के लिए आते रहे जी। और अपना ठीक है, शाहिद सलीम बहुत शुक्रिया, गुजरांवाला से आप हमें अपडेट कर रहे थे। नईम खानजादा, साकिब सलीम भट्ट और वकास अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत पर मातमी जुलूसों के साथ साथ बड़े पैमाने पर न्याज का एहतमाम भी किया जाता है। यौम आशूर पर मुल्तान में हलीम की 100 मन देग बनाई गई। इस बारे में मजीद बता रहे हैं खिजर अब्बास। मुहर्रम उल हराम को जहां नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन समेत करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं, वहीं अकीदतमंद लंगर और न्याज का सिलसिला भी नहीं रुकने देते। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में आस्ताना फरीदिया की इंतज़ामिया की तरफ से हलीम की 100 मन देग तैयार कराई गई। की देग तैयार की है, सारी रात इसको तैयार किया जाता है। 100 मन हलीम की तैयारी में 100 किलो काजू, 100 किलो जौ, 100 किलो की मिकदार में 4 दालें और 100 किलो घी के अलावा बछड़े का गोश्त इस्तेमाल किया गया। हलीम खाने के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों की लाइनें लगी रहीं। खिजर अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों की? गुजरांवाला में पुलिस ने शहरी पकड़ कर थाने भर दिए। थानों में जगह कम पड़ने पर पुलिस ने शहरियों को जनाना हवालात की भी सैर करवा दी। गुजरांवाला पुलिस ने शहरी पकड़ कर थाने भर दिए। जी हाँ, डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों की? गुजरांवाला में पुलिस ने शहरी पकड़ कर थाने भर दिए। थानों में जगह कम पड़ने पर शहरी जनाना हवालात में बंद कर दिए गए। वाला पुलिस ने 9 मुहर्रम से डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने वालों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर रखी हैं। जिला के 30 से ज्यादा थानों ने 2 दिनों में 800 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को पकड़कर बंद कर दिया है। अब सूरत हाल यह है कि पुलिस स्टेशनों में जगह कम पड़ गई है। शेर जवानों ने यह मसला हल करने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को मर्दाना की बजाय जनाना हवालात में बंद कर रखा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पकड़े गए ज्यादातर अफराद के वरसा को इतला दी गई जो उन्हें छुड़ा कर ले गए हैं। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए अफराद ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने बहुत से लोगों को मुकमका करके या बासर अफराद की सिफारिश पर छोड़ा है। शाहिद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। आपको बताएं लाहौर का अहवाल। लाहौर में डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक कराची में भी आज रात 10 बजे मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म हो जाएगी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज रात 12 बजे के बाद आप डबल सवारी कर सकेंगे। कराची में 1 घंटे बाद मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म होगी। डबल सवारी की पाबंदी के हवाले से आपको बताते चलें कि कराची में 1 घंटे बाद ये पाबंदी खत्म हो जाएगी, जबकि दीगर शहरों में रात 12 बजे डबल सवारी पर पाबंदी खत्म होगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म हो चुकी। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि कराची में भी आज रात 10 बजे मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म हो जाएगी। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। आरिफ महमूद से मजीद जानते हैं। अलमदार रोड निचारी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मरकजी जलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जुलजना अलमों और ताजियों के जलूस की क़यादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर दाऊद आगा ने की, जबकि जलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। जो विजिबल है इनविजिबल है दोनों तरह की हमने सिक्योरिटी की हुई है। जुलूस के शुरका ने आज के दिन के हवाले से मोहब्बत और भाईचारे पर जोर दिया। कोयटा का जुलूस मिसाली जुलूस है अपने नज़्म ज़ब्त के हवाले से, और इंशाल्लाह यही डिसिप्लिन आइंदा भी कायम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिस तरह कोयटा में आशूरा का जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ,
पूरे पाकिस्तान में इसका इख्तिताम पजीर हो। इससे पहले नमाज ज़ोरैन बाचा खान चौक पर अदा की गई, जबकि सिक्योरिटी से मुतालिक कमिश्नर कोयटा भी मुतमईन नजर आए। पॉलिटिकल एल्डर्स हैं और जो हमारे अहले तशीब भाई हैं उनके एल्डर्स हैं, उनको साथ रख कर इस प्लान को तरतीब दिया गया है। योम आशूर के जुलूस की हिफाजत के लिए 7,500 पुलिस और FC एहलकार तैनात किए गए। हेलीकॉप्टर से भी फिजाई निगरानी की गई। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। शहर शहर, बस्ती बस्ती, करिया करिया और गांव गांव यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कई शहरों में इस वक्त भी शाम गरीबा की मजालिस हो रही हैं। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। तमाम छोटे बड़े शहरों में आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में छोटे बड़े 150 मातमी जुलूस निकाले गए। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। गुजरांवाला में योम आशूर पर 88 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। शहर के बड़े मरकजी जुलूस गुलिस्तान मार्फत और ख्याली दरवाजे से बरामद होकर अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुए। मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया ट्रस्ट से बरामद हुआ। कई छोटे बड़े ताजिए और जुलजना के जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते रहे। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। सखर समेत अंदरूने सिंध में सख्त सिक्योरिटी में मातमी जुलूस बरामद हुए। मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। हैदराबाद और ज़ेरी सिंध में योम आशूर के दर्जनों मातमी जुलूस निकालकर शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद में मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हैदरी के तहत कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में योम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पिशावर में इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस निकाले गए। डेरा इस्माइल खान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बम्बू शाह से बरामद हुआ, जिसमें 19 जुलूस शामिल हुए। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। मरी में मरकजी इमाम बारगाह तहसील रोड से बरामद होने वाला आशूरा का जुलूस GPO चौक पहुंचा, जबकि कदीमी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला दूसरा जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो गया। मुजफ्फराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर इल्म शाह बुखारी से बरामद हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के चारों अजला सकरदू, खरमंग, शग्र और गांचे में 136 मुकामात से अलम, ताजिया और जुलजनाह के जुलूस बरामद किए गए। मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। यौम आशूर पर मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कोयटा में भी अकीदतमंदों की तरफ से नजरो न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया। इससे मुतालिक बता रहे हैं जब्बार बलोच। यौम आशूर पर कोयटा में नजरो न्याज का सिलसिला जारी है। जिना रोड, पटेल रोड, तोगी रोड, जॉइंट रोड और शहर के दूसरे इलाकों में अकीदतमंदों ने हलीम, बिरयानी, दाल चावल और जर्दा की देगें तैयार करवाईं, जिनको मज़ेदार बनाने के लिए मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल किए गए। जो चीज़ का आर्डर आता है ना, उसी के लिए हम लोग तैयार है, बस सब चीज़ इसके तैयार मिलता है। अकीदतमंद साल भर अपनी मन्नतें पूरी होने पर मुहर्रमुल हराम में नजरो न्याज करते हैं। इससे उनकी शहदाए करबला से मोहब्बत का इजहार भी होता है। हर साल करते हैं, चावल की देग की हर साल खैरत करते हैं मुहर्रम के दिन। अकीदतमंद कहते हैं कि नजरो न्याज से इनको रूहानी सुकून मिलता है। जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। दुनिया भर में यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर 20 लाख से ज़ायद अफराद जमा हैं। ईरान, शाम, लबनान और भारत समेत कई मुल्कों में यौम आशूर के जुलूस निकाले जा रहे हैं। नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी की याद में दुनिया भर में यौम आशूर मनाया जा रहा है। लाखों अज़ादार मातमी जुलूसों में शामिल हैं। शबी, जुलजना और ताज़िए बरामद किए जा रहे हैं। मातम और अज़ादारी का सिलसिला भी जारी है।
इराक के शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिर्द 20 लाख अफराद जमा हैं। यौम आशूर के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन के काफ़िले खुसूसी तौर पर करबला पहुँचे हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। इराकी हुकूमत ने किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। ईरान और लबनान में भी ज़ाकिरीन और उलमा वाक़या करबला बयान करके इस अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शाम में जंग और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बड़े पैमाने पर मजालिस मुनक्किद हुई और मातमी जुलूस निकाले गए, जिनमें लाखों लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा लबनान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी आज़ादारी का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला भी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। यौम आशूर पर तमाम शहरों में जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में डबल सवारी पर पाबंदी उठा ली गई। सर्जिकल स्ट्राइक होती तो भरपूर जवाब देते हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं सार्क के अगले इजलास की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा। और MQM लंदन में फिर हलचल। आमिर खान, ख्वाजा इजहार, फैसल सब्जवारी और किश्वर जहरा की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स होती तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देता। भारत के पास सबूत नहीं, जाली सबूत कभी भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा कहना है अब्दुल बासित का। यह भी कहना था अब्दुल बासित का कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स होती तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देता। भारत के पास इन स्ट्राइक्स का कोई वीडियो सबूत नहीं। एक और बड़ी खबर थी आपको, सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बेनकाब होने पर भारत का खामोश रहने का फैसला। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के मामले पर खामोश रहने की पॉलिसी अपना ली। भारतीय हुकूमत सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ पकड़े जाने के बाद नाम नेहाद सबूत देने से भी मुकर गई है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने मुबैना सबूत ना दिखाने का फैसला किया है। भारत की 4 रियासतों के इंतखाबात में इंतहा पसंदों का वोट बैंक लूटने के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, मगर सबूत दिखाने की बात आई तो हुकूमत के बड़े आए बाएं शाएं करने लगे। कब तक आप उसका सबूत पेश करेंगे ताकि विपक्ष भी चुप हो जाए? वैसे मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट को अभी तक पढ़ा नहीं, मैंने 2-3 दिनों में मैंने पढ़ा नहीं। दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए भारत ने जंगी मशकों के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो तैयार करने का मंसूबा भी बनाया, मगर ये साजिश मकबूजा कश्मीर के रुकन असेंबली ने बेनकाब की तो मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए। और अब सूरत हाल ये है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम नेहाद सबूत दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। हुकाम का कहना है कि जिसने मानना है बगैर दलील के मान ले। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी हुकूमत का कहना है कि सबूत दिखाने से पाक भारत कशीदगी बढ़ेगी, जबकि हकीकत ये है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दिन भी कशीदगी में कोई कमी नहीं आने दी। सर्जिकल स्ट्राइक के मुबैना सबूत ना दिखाने के फैसले से लगता है कि भारतीय हुकूमत मजीद झूठ बोलने के मूड में नहीं। अहम खबर ने आपको, सिर्फ 2 हमलावरों ने भारतीय फोर्सेस की अकड़ निकाल दी है। बढ़ के सर्जिकल स्ट्राइक की और सिर्फ हमलावरों के आगे घुटने टेक दिए। जी हां, सिर्फ 2 हमलावरों ने भारतीय फोर्सेस की अकड़ निकाल दी, बढ़ के सर्जिकल स्ट्राइक की और सिर्फ 2 हमलावर काबू ना आए। मकबूजा वादी में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ने वाली भारतीय फौज 2 हमलावरों के आगे भीगी बिल्ली बन गई। श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इलाका पामपुर में 3 दिन पहले सरकारी इमारत पर 2 हमलावरों ने कब्जा किया। उनकी फायरिंग से 3 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए। बुज़दिल भारतीय फौज 56 घंटे तक इन हमलावरों के सामने बेबस और लाचार दिखाई दी। अब भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि कमांडोज ने मुसल्लह अफराद से इमारत का कब्जा छुड़ा लिया है, मगर ये नहीं बताया जा रहा है कितने कमांडोज और कितने हमलावर हलाक हुए हैं।
दूसरी जानिब भारतीय फौज को ताहाल ये मालूम नहीं कि हमलावर कितने थे और 56 घंटों में उनके कितने साथी फरार हुए। उसे तो सिर्फ इतना पता है कि हमलावर दरियाए जेहलुम में तैर कर आए थे। 5 माह पहले भी इस सरकारी इमारत पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोलकर भारतीय फौज को नाकों चने चबा दिए थे। इस झड़प में 5 भारतीय फौजी भी मारे गए थे। मकबूजा कश्मीर में 96 रोज से कर्फ्यू की पाबंदियां जारी हैं और निज़ाम जिंदगी मुअत्तल है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को यौम आशूर मनाने की इजाजत भी नहीं, जिस पर कश्मीरी कर्फ्यू तोड़ते हुए बाहर निकल आए। भारतीय फौज ने आशूरा के पुरम जुलूसों पर भी रहम नहीं खाया और वहशियाना तशद्दुद करके दर्जनों अज़ादारों को जख्मी कर दिया। 4 माह से काबिज भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की हर हद तोड़ दी है। भारतीय फौज ने मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा और कश्मीरियों को मातमी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी। कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी अलमे बगावत बुलंद करते हुए सड़कों पर निकल आए और जुलूस निकाले। भारतीय फौज ने गमे हुसैन मनाने वालों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करके कई अज़ादारों को जख्मी कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने यौम आशूर मनाने की इजाज़त न देने पर मोदी सरकार और कठपुतली इंतजामिया पर शदीद तनकीद की है। श्रीनगर में 96 दिन से तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। तालीमी इदारों की बंदिश से तुलबा की तालीम का भी हर्ज हो रहा है, लेकिन वो भी आज़ादी के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं। कश्मीरी नौजवानों ने मकबूजा वादी की हर दीवार पर लिख दिया है कि वो भारतीय कब्जे से आज़ादी हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और शजरा मनसब ने न्यूयॉर्क में भारतीय मजालिम से मुतालिक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सदर के हवाले कर दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वफ्द सेनेटर मुशाहिद हुसैन और शजरा मनसब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर थॉमसन पीटर से मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के हवाले किया।